Okay, let's start with Nokar mantra. Saina, do you want to say Nokar mantra? Yeah. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayayanam. Namo Uvajayanam. Namo Loe Savasahunam. Eso Pancha Namakaro. Sava Pavak Panashano. Mangalanam Cha Savvesim. Paramam Havai Mangalam. Thank you. So let's पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. Saina, do you want to say the meaning of Nokar mantra? Yes. Okay. So I took some notes. Can I read those? Yeah, sure. Yeah. Okay. Navkar Mantra is a Sanskrit word. There are 9 pads in Navkar Mantra Sutra. First 5 are called Panchamanga and the last 4 are called Chulika. So the first line, Namo Arihantanam, means I bow down to Arihantas. The second line means Namo Siddhanam, I bow down to Siddhas. Third line means Namo Aryayanam means I bow down to Acharyas. Then Namo Loy Savvasa. Namo Uvajayanam. Namo Uvajayanam means I bow down to Upadhyayas. And Namo Loy Savvasahunam that means sadhu. I bow down to sadhus and sadhis. So for each so there are guns for each Panch Parmeshti. So that's Arihant has 12 guns, Siddha has 8 guns, Acharya has 36 guns, Upadhyayas has 25 guns, and Sadhus and Sadhis have 27 guns. That's why we pray them. And then Asa Panchanamkara means by bowing down to these Panch Parmeshti, I will get rid of my karma. Then Sabba Pavapanashano means Navkar mantra is Sarva Sharis Manglanam Cha Savvesim means this. Is the Sarva Shreshti Mangal among everything. Mangala Namcha Savvesim means Padamam Havai Mangalam. And yeah, Paramam Havai Mangalam means there are 68 letters. No. You hear in Hindi. Oh no. Ya bhav mein vigna aur upadrav ka nash kare. और next भाव में दुक्ति का नाश करे. Okay. And there are 68 letters in the Navkar mantra, which means 68 stands for 68. Stands for 68. Yes. There are 8 sampadas, which means stop. Stop in the right manner while reciting. Okay, now that's good. So थोड़े corrections, little corrections. So पहले Naukar mantra is a Prakrit word. Okay, Naukar is a Prakrit word, and Namaskar Maha mantra is a Sanskrit word. Okay, so Naukar is not a Sanskrit word. Naukar is Prakrit. Yeah. Okay. फिर उसके बाद when you say Namo Loe Savva Sahuram, right? It's Loe मतलब लोक, मतलब समस्त लोक में जो भी साधु भगवंत है उन सभी को नमस्कार. Okay, not just namaskar to sadhu bhagwan, namaskar to all the sadhu bhagwans. Okay, in the Adidweep. Okay. Yeah. और फिर लास्ट लाइन जो परमम अभि मंगलम था, तो आई थिंक यू मिस दैट. इट्स बेसिकली इट्स अ प्रथम मंगल या सर्वश्रेष्ठ मंगल. ओके. Okay. Myra, do you want to say the colors of the Naukar mantra?
Yeah, so you know, right? You don't have to say. Just say. Arianta stands for white. Siddha stands for red. Acharya stands for yellow. Upadhyaya stands for green, and Sadhusati stands for blue. And I can also say the numbers of them. So Arihantas are 12 guns. Siddhas are 8 guns. Acharyas are 36 guns. Upadhyayas are 25 guns, and Sadhusadis are 27 guns. Okay. Yeah, the only correction is Namo Loe Savvasaram is black color, not blue. Okay, black. It's black. This one? Yeah, you should write black. You say you write blue, right? It has to be black. Yeah, Uvajayanam can be light blue or green. Can be either one. This is black. Namo Loe Savvasaram is It's not blue, it's black. black. And the last 4 pad you can imagine white. What color is the last 4? That's all white. Yeah, you can think of white. Okay. Okay, good. Okay. So next was Panchindiya Sutra, right? So who can say the meaning of first 18 guns? जो 18 guns हमको छोड़ने के हैं, त्याग करने के हैं. Myra, you want to try? Okay, so the first one is the 5 indriyas, which are our 5 senses, which are taste, hear, sight, touch, and taste. And the next one are 9 brahmacharya palan, and the third one is the 4 kasais, which are Krodh, Man, Maya, and Lobh, which so Krodh means anger, Man means that you're proud of yourself, and Maya means like tricks you do on other people, and Lobh means greed. Okay. So so only correction you have is when you say the first 5 guns, right? So you said the 5 senses, but what about 5 senses? What do you have to do about the 5 senses? What do you have to do about the 5 senses? Panchindiya Samvarno, what you have to do about the 5 senses? The guns are not 5 senses. 5 senses तो आप क्या करो? Hearing करो तो आप क्या करना? बुरी चीजें हबल? Things like that. What are the 5 senses you should avoid? You should not do with the 5 senses. We should not hear bad stuff. And when we see, we should not see bad stuff. Right. Yeah. So basically, it's a 5 senses का संवर, मतलब 5 senses के relation में राग और द्वेष नहीं, right? So you do not have any attachment or hatred, right? Of any of the things related to 5 senses. Those are guns. Okay. फिर 9 brahmacharya and the 4 kashais. What? Not the 4 kashais are not the gun, right? 4 kashais की mandata is the gun. मतलब 4 kashais राग, क्रोध, मान, माया, लोभ वो एकदम कम हो, right? स्वजलन कषाय हो, that is gun. Okay. Then what are the 18 guns that one should that Acharya Bhagwant that जो उपादेय है, जो प्रवृत्ति वाले है? Can anyone say? What? By looking next 18 guns. You don't know the names, right? It's okay. But you can just say 5 names. Panch, Mahabharat, yeah. So there are 5 Mahabharats and 5 Acharyas. Achar. Achar. And one of them are Gyanachar. One of them are Darshanachar. One of them are Charitachar. One of them are Tapchar. One is Viryachar. Yes. And one is that's all. And then there's more 5 and 3. What is that? I don't know. 5 Samiti. Yeah, right. 5 Samitis. There are 5 Samitis, and there
And that means right ways, and 3 guptis. Yeah. इसका थोड़ा डिटेल नहीं किया मैंने इसके साथ. नहीं, okay. I think बच्चों को okay. Summer, can you explain the last 18? Okay, so Pancha Mahavrats. So we started with the 5 Mahavrats: Ahimsa Anuvrat, Satyanuvrat, Astyanuvrat, Brahmacharyanuvrat, and Aparigrahanuvrat. So it's pretty obvious the meaning of each. Non-violence, truthfulness, non-stealing, celibacy, and non-possessiveness. And they have to follow these very strictly. It's strict vows. Then there's the Panchachar, which Mara mentioned. There's Darshanachar, the aspects of darshan, or the aspects of faith, basically. Jnanachar, the aspects of jnana. Charitachar, ways to follow conduct, right conduct. Tapachar, different taps they can do, and Viryachar, how to use the energy correctly. Then 5 samitis. Aishna Samiti is carefulness. I forgot. Aishna Samiti. पहले Iriya Samiti आएगा. Carefulness in walking. Bhashna Samiti is carefulness in talking. Iriya Samiti is carefulness in taking alms. Adan Nikship Samiti is carefulness in handling pots and pans. And then Parista Panaka Samiti or Utsak Samiti is carefulness in disposing of waste. And there's just 3 guptis remaining. Man, control over mind, thoughts in your head, control over your speech, and control over your actions. Is Vachana? Man, Vachan, Kaya. Man, Vachan, and Kaya. Okay. Yeah. So, we will, at the end of the class, we'll go into some details about this Panchachar. So Summer, especially for you. So if you can, stay for a while and the kids can go, so thoda detail mein we can discuss all this. It's very important to understand. So Abhi, I think we will move forward. So one question, important question, Summer. So what is the importance of Panchindiya Sutra? Can you tell me? Basically, you're saluting the 36 guns of Acharya Maharaj because in the present, in this 5th era, there is no arihants on Bharat Kshetra. So Acharyas are the ones who are preaching us right now. So we salute them in the sutra. Okay. And why is the Panchindiya Sutra the 2nd sutra? Because it talks about the Acharyas. Talks about the 36 guns of Acharya. There's the second line after Arihants and it comes preaching, right? Is that why? Yeah. The main reason is कि हमको जीवन में सद्गुरु या Myra. So Panchindiya helps us find the right guru. Right, exactly. So अपने जीवन में जो last time पता है हमने एक equation दिया था. It's a very good equation that Maharaj Sahib gave me, and you have to remember this equation all your life. तो equation जो था कि मोक्ष जाने की तीव्र इच्छा प्लस सद्गुरु योग is equal to मोक्ष. Okay? तो मोक्ष जाने की तीव्र इच्छा प्लस सद्गुरु योग is equal to मोक्ष. तुम्हारे पास मोक्ष जाने की तीव्र इच्छा हो पर सद्गुरु नहीं हो तो you cannot go to मोक्ष. Because सद्गुरु gives you the path. और अगर तुम्हारे पास सद्गुरु हो पर तुम्हारी इच्छा नहीं हो then also you cannot go to मोक्ष. So दोनों चाहिए. So that is a very simple equation that everyone has to remember. And Panchindiya Sutra is so important because हम जो भी क्रिया करते हैं, right? हम जो भी सामायिक प्रतिक्रमण आदि क्रिया करते हैं वो गुरु के आज्ञा के और गुरु के साक्षी में करते हैं. Okay? So it is our अपने आचार होते हैं कि हम जो भी क्रिया करें, शुभ क्रिया करें, धर्म क्रिया करें, वो गुरु की आज्ञा लेके करें. Here in US, that is something we are missing, that we do not, take आज्ञा of Guru Maharaj. पर इंडिया में छोटा सा छोटा नियम भी, एक नौकार का पचकान भी गुरु महाराज से लेना होता है. सो इवन द स्मॉलेस्ट थिंग गुरु महाराज से आज्ञा से करना होता है. इसलिए पंचेंद्रिय सूत्र इज सो इम्पोर्टेंट कि पहले गुरु की स्थापना करते हैं और गुरु की साक्षी में हम ये क्रिया करते हैं, तभी वो क्रिया सक्सेसफुल होती है. ओके, सो आफ्टर दैट we'll go to the 3rd sutra, and 3rd sutra is a Khamasano sutra. Okay, and we all know this sutra, Ichchami Khamasamano Vandiyum Jamni Jai Nisiyai Mather Vandami. Now this sutra is very, very powerful sutra. Okay, so let's first understand the meaning of this sutra. We make lots of mistakes in understanding this sutra.
It's such a simple sutra, but it's still, उसमें काफी सारे रहस्य छुपे हुए हैं. So let's first understand the simple meaning. Okay, इसका अर्थ क्या है? तो इच्छामि खमा समरो मतलब मैं इच्छा करता हूँ. ओके, मैं इच्छा करता हूँ. इच्छामि मतलब मैं इच्छा करता हूँ. खमा समरो मतलब क्षमा के भंडार. ओके, क्षमा जो क्षमा शमनो, और जो क्षमा मतलब क्षमा, राइट, कंपैशन, क्षमा. और समरो मतलब साधु, जो साधु भगवंत होते हैं ना, उसको श्रमण कहते हैं. तो जो भी क्षमा के भंडार है, मतलब अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली जो कंपैशनेट टुवर्ड्स ऑल द जीव, उसको समा शमनो बोलते हैं. तो एक मीनिंग है कि जो क्षमा के भंडार है ऐसे साधु भगवंत, और दूसरे मीनिंग है कि जो तपश्चर्या करते हैं ऐसे साधु भगवंत, उसको भी क्षमाश्रमण कहते हैं. कि पहले जमाने में जो भी तपस्या करते थे उनको क्षमाश्रमण कहते थे. तो इच्छामि खमा समरो मतलब मैं इच्छा करता हूँ हे क्षमा के भंडार, हे साधु भगवंत. और मैं क्या इच्छा करता हूँ? तो वंदी ऊम मतलब मैं वंदन करने का इच्छा करता हूँ, मतलब आई वॉन्ट टू डू योर वंदन. फिर उसके बाद है जावनिक जाए. कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ जावनिक जाए? जावनिक जाए मतलब मैं पूरी शक्ति का उपयोग करके, मन वचन काया के पूरी शक्ति का उपयोग करके, मतलब उत्साह पूर्वक. ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेन एवर यू आर सेइंग दिस सूत्र, तुम्हारे अंदर एक उत्साह पैदा होना चाहिए, तुम्हारे अंदर एक एनर्जी पैदा होनी चाहिए कि मैं सभी अपना मन वचन और काया तीनों का योग मिला के, तीनों का योग का वीर्य मतलब एनर्जी मिला के निसी ही आए. Now, Nisiyai is a very famous shabda. Can anyone tell me the meaning of Nisiyai? Myra? तुम्हारा म्यूट है मायरा. No, You do Nisi. we Yeah. don't know. I don't think. You know? You want to try? No? Okay. अच्छा, साइना. Summer. Does it mean renunciation in a Yeah. way? Yeah, exactly. Yeah, निसीयाय मतलब हम जब देहरासर जाते हैं 3 निसी बोलते हैं, राइट. तो पहला निसी बोलते हैं कि हम सभी संसार की प्रवृत्ति का त्याग करते हैं. दूसरा निसी बोलते हैं कि देहरासर के सभी प्रवृत्ति का त्याग करते हैं. और थर्ड निसी बोलते हैं कि हम द्रव्य पूजा का भी त्याग करते हैं, राइट, और भाव पूजा में जाते हैं. तो यही अर्थ में यहाँ पे है. निसीयाय मतलब मैं मन वचन काया की जो भी अशुभ क्रिया है, जो भी पाप की क्रिया है, वो मैं त्याग करता हूँ. ओके, और उसके बाद है मथेर वंदामी. मथेर वंदामी में मस्तक से वंदन करता हूँ. ओके, तो दिस इज सिंपल मीनिंग. तो इसका है कि मैं इच्छा करता हूँ हे साधु भगवंत, हे क्षमा के भंडार, हे तपस्वी, मैं वंदन करने का इच्छा करता हूँ और मैं पूरी शक्ति लगा के मन वचन काया का पूरा उपयोग उसमें जुड़ के सभी पाप रूप प्रवृत्ति का त्याग करके मैं वंदन करता हूँ. ओके, दिस इज अ सिंपल मीनिंग ऑफ दिस सूत्र. ओके, तो इसमें वंदन हम गुरु महाराज को कर रहे हैं, राइट? या किस- गुरु महाराज को, गुरु महाराज को वंदन कर रहे हैं. या गुरु महाराज को वंदन करते हैं, क्योंकि वो क्षमा श्रमण शब्द वो गुरु महाराज के लिए है. तो हम मंदिर में जब चित्त वंदन करते हैं भगवान के सामने, तब भी हम क्षमाशना देते हैं. या भाव तो वही है, क्योंकि ना मतलब यूजुअली क्या होता है कि तुम आगे देखोगे कि जब गुरु महाराज होते हैं ना, तो वो बीच बीच में कम्युनिकेट करते हैं तुमसे. तो हम अभी आगे देखेंगे कि उनका कम्युनिकेशन कैसा होता है ये सूत्र में. ओके, तो फिर उसके बाद जो हमने समाज श्रमण जो शब्द देखा, राइट, मतलब उसका मीनिंग क्या. तो शास्त्र में उसका मीनिंग ऐसा है कि जो भी साधु महाराज जो 10 यति धर्म का पालन करता हो उसको समाज श्रमण कहते हैं. ओके, तो उसमें जो 10 जो यति धर्म है, तुमको ये याद रखने की जरूरत नहीं है. प्रॉब्ली समर फॉर समर इट माइट बी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस. पर जो 10 यति धर्म है, समर यू माइट इवन नो, राइट, तुमको पता है व्हाट आर द 10 यति धर्मस? कैन यू टेल? Yeah, Shama, Madhava, Ajwa, Shach, Satya, Brahmacharya, Sam, Tap, Akinchanya, and I'm missing one, I know. परिग्रह. Parigraha, yeah.
या तो जो वो ना 10 यति धर्म है, तो ऐसे ऐसे जिसके 10 गुण हो उसको समाश्रमण कहते हैं. ओके, सो ऐसे साधु महाराज को हम वंदन करते हैं. ओके, तो अभी ना सम मोर इंफॉर्मेशन कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वंदन. ओके, तो जैसे हमको रास्ते में अगर इंडिया में चल रहे हो और रास्ते में साधु महाराज या साध्वी महाराज हमको दिखे, तो यू से मथेर वंदामी. ओके, व्हेन दे आर वॉकिंग. सो दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ वंदन, और उसको शास्त्र में बोलते हैं फीटा वंदन. ओके, उसका जो शास्त्र का नाम है उसको बोलते हैं फीटा वंदन. Wait, Chaitanya uncle, हाँ, can we also say Vandami Namam Sami? या वंदामी नमन स्वामी वो आई थिंक वो स्थानकवासी का है या तेरापंथी का है, Oh, okay. दैट वर्ड. बट इट्स फाइन, आई थिंक इट्स अ सेम मीनिंग. इट्स अ सेम मीनिंग. अपने में वी से मतेर वंदामी, वो लोग वंदामी नमम स्वामी ऐसा बोलते हैं, पर आई थिंक इट्स अल्टीमेटली द सेम मीनिंग. Okay. फिर उसके बाद है दूसरा टाइप का वंदन है, उसको थोम वंदन कहते हैं. तो डज एनीवन नो द विधि ऑफ हाउ टू डू गुरु वंदन? कैन एनीवन टेल मी द विधि? गुरु वंदन कैसे करें? Oh, first it's Chami, Kamasaman, then again it's Kamasaman, then Icha Karna Suhai, शिकार सुहराए. Ichikar Suhai, then Kamasaman again, then Abotiomi, then Kamasaman again. Right. So that is a vidhi of Guru Vandan. Okay. But, that vidhi you said for Guru Vandan is for Acharya Maharaj Sahib. Okay. So there are 2 types of Guru Vandan. तो पहले 2 खमासन देते हैं. ओके, उसके बाद हम इचकार बोलते हैं. उसके बाद अगर आचार्य महाराज साहब हो तो यू डू 1 खमासना, एंड इफ देयर इज नो आचार्य महाराज साहब यू डायरेक्टली डू अबुठ्योमी. यू डोंट हैव टू डू 1 खमासना. Okay, so there are 2 separate methods. If there is Acharya Maharaj Sahib, you have to do 1 Khamasana in after Ichkar, and if there is no Acharya Maharaj Sahib, you can directly do Abhuthyomi. तो जो 2 टाइप के वंदन है, जो एक को थॉम वंदन कहते हैं, जो वेर यू डू नॉट डू खमासना. सो इफ यू आर डूइंग गुरु वंदन टू अ रेगुलर साधु who does not have any padvi, who is not a acharya or who is not a upadhyay, in that case you can skip the 1 khamasana, and if it is Acharya Maharaj Sahib you have to do 1 khamasana. Okay, so there are 3 types of vandan. One is known as fita vandan, that you say mathen vandami. Second is thom vandan, that is regular sadhu, and another is dwarsavarth vandan, where you do khamasana in between ichkar and abhuthyomi, and especially for Acharya Maharaj Sahib. Okay, so there are 3 types of vandan. So in US, when you are doing the vandan in front of photo, you always do vandan for Acharya Maharaj Sahib. So you do 1 kamashana in between. Okay. चेतन भाई, व्हाट इज द रीजन कि महाराज साहब के लिए हम एक कमाशा नहीं देते हैं और आचार्य महाराज के लिए हम देते हैं? वो मेरे को रीजन तो पता नहीं है, पर आई थिंक रिस्पेक्ट ज्यादा होता है शायद. आई थिंक दैट माइट बी द रीजन. या ओके, क्योंकि खमाशना का जो मतलब है उसमें तो हम यही बोल रहे हैं, राइट? मन वचन काया से मतलब हम पूरे मन से उनको वंदन कर रहे हैं, बाकी चीजों का त्याग करके. राइट. या मीनिंग तो वही हुआ, पर आई थिंक दे हैव सेपरेटेड आउट कि आचार्य महाराज साहब को ज्यादा रिस्पेक्ट दिया है, एंड अदर साधु भगवंस को थोड़ा कम रिस्पेक्ट दिया है. मतलब कम रिस्पेक्ट इन द सेंस की जरूरत नहीं है. अभी ये सब विधि ना अभी गंधर्व भगवंतों की विधि है, तो हमको एग्जैक्ट पता नहीं है कि वो रीजन क्यों है. ओके, नेक्स्ट. है ना, मुझे तो लगा था कि साधु भगवंत को एक खमासमन देते हैं और साध्वी भगवंत होते हैं तो नहीं देते, बीच का एक खमासमन. नहीं, आई थिंक साध्वी महाराज का तो देते नहीं है, पर इवन साधु महाराज में सिर्फ पदवीधारी को ही देते हैं बीच में. ओके. या मतलब आई थिंक इतना इंडिया में इतना लोग क्लियर नहीं करते, पर ओनली इफ इट इज पन्यास उपाध्याय या आचार्य तभी एक खमासन देते हैं, और रेगुलर साधु हो तो बीच में खमासन नहीं देते. क्योंकि मेरे को याद है हम छोटे थे ना, तो हमको करेक्ट करते थे काफी महाराज साहब कि जरूरत नहीं है बीच में खमासन देने का. या सो दे यूज्ड टू करेक्ट अस. तो आई थिंक साधु महाराज और साध्वी महाराज के लिए इट माइट बी द सेम विधि. और फिर जो भी पदस्थ है, मतलब उसके बाद पन्यास हो, आचार्य हो या उपाध्याय हो, पन्यास उपाध्याय या आचार्य, तो उसके लिए खमाश्र देने की जरूरत है. ओके. You didn't mention Utkrishta Vandan. What is that?
Okay, what was that again? मतलब वो 3 type of बंधन, right? Yeah, Utkrisht Vandan. You didn't mention Utkrisht Vandan. नहीं, फीटा वंदन, थोम वंदन और द्वादशावर्त वंदन. Oh, I've read Utkrisht Vandan somewhere. नहीं, उत्कृष्ट तो नहीं बोला, पर द्वादशावर्त वंदन. ओके, और हम आगे देखेंगे कि हाउ टू परफॉर्म द वंदन. हम लोग वंदन ऑफ कोर्स हम लोग काफ़ी गलत करते हैं, पर वी विल सी हाउ टू. शायद मेरे को एक वीडियो भी बनाना पड़ेगा. पर ओके, तो फिर अनदर थिंग इज कि तुम वंदन कब कर सकते हो और वंदन कब नहीं कर सकते हो, राइट? तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. तो जब you know there are 4 rules, okay, when you can do vandan and when you should not do vandan. तो जब गुरु महाराज शांत बैठे हो, अपने आसन पे बैठे हो, वो कोई भी क्रिया में इन्वॉल्व नहीं हो, जैसे वो खा पी नहीं रहे हो या फिर यू नो कोई भी क्रिया में वो इन्वॉल्व नहीं हो, और वो वंदन के लिए तैयार हो, तब अब वंदन कर सकते हैं. ओके, जब गुरु महाराज कोई चिंतन में हो, अपने आसन पर वो बैठे नहीं हो, कब कोई क्रिया में व्यस्त हो, जैसे आहार पानी आदि कुछ कर रहे हो, और वो वंदन के लिए अगर तैयार नहीं हो तब हम वंदन नहीं कर सकते. ओके, तो इंडिया जाओ, यू नो यू हैव टू सी, यू हैव टू चेक कि गुरु महाराज साहब इज रेडी फॉर वंदन. ओके, तभी वंदन करने का. यू नो इफ गुरु महाराज साहब अगर गोचरी ले रहे हो या यू नो कोई अदर क्रिया में वो व्यस्त हो, देन यू हैव टू स्किप द वंदन. ओके, सो दोस आर द रूल्स ऑफ डूइंग वंदन. तो अभी जब रियली हम वंदन करते हैं तो हम कैसे करते हैं? ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट. तो जब इंडिया में थे तो हम पहले बोलते हैं इच्छामी खमा समरो वंदियुम जामि जाय निसी ही आए. ओके, सो दिस इज अ सेंटेंस यू स्पीक व्हाइल यू आर स्टैंडिंग अप. ओके, तो अभी तो हम क्या करते हैं कि इच्छामी खमा समरो बोलते हैं और हम नीचे नीचे हम लोग झुक जाते हैं, यू नो, बट दैट इज रॉन्ग. ओके, यू हैव टू स्टैंड अप एंड यू हैव टू से दिस लाइन. ओके, तुमको 2 हाथ जोड़ के तुमको थोड़ा वंदन, थोड़ा अपने सिर को आगे झुका के तुमको ये बोलना चाहिए इच्छामी खमा समरो वंदेम जामृत जाए निसी ही आए. ओके, तो वहां पे तुमको रुक जाना चाहिए. ओके, तो तुम गुरु महाराज साहब को पूछ रहे हो कि हे क्षमाश्रमण, मैं वंदन करूं आपको या नहीं, राइट? यू आर आस्किंग दैट क्वेश्चन. और इंडिया में तुम अगर जाओ तो गुरु महाराज साहब बोलेंगे छंदेना, वो शब्द बोलेंगे. छंदेना मतलब तुम्हारी इच्छा हो तो करो. ओके, दैट इज अ मीनिंग. गुरु महाराज साहब विल से छंदेना. उसके बाद तुमको झुक के मथेरवंदामी बोलना है. ओके, सो हियर ऑल्सो व्हेन यू डू खमाशना, यू हैव टू स्टैंड अप और फिर यू हैव टू से द होल लाइन बिफोर यू बो डाउन. ओके, सो इच्छामी खमा समरो वंदियुम जामृजाय निसी आए, और वहां पे उसके बाद मथेर वंदामी बोलो, तब जाके तुमको नीचे तुमको झुकना है. ओके, सो वंदन कैसे करने का, अगेन इट्स अ वेरी यू नो इम्पोर्टेंट थिंग. तो अपने अपने वहां ना पंचांग प्रणतिपात है. डज एनीवन नो व्हाट इज पंचांग प्रणतिपात? There's the 2 elbows, 2 pinky fingers, and your head. 2 knees. 2 knees, 2 knees. ओके, सो दैट इज अ मिस्टेक. यहाँ पे गलत सिखाते हैं. सो 2 elbows should not be touching the ground. ओके, सो यहाँ पे सभी पुस्तक में रॉन्ग है. ऑल द बुक्स इट्स रॉन्ग. ओके, सो 2 elbows अपने अंदर होने चाहिए. जो ये पिक्चर मेरे को बहुत ढूंढने के बाद मिला, पर elbows should be between the legs. It should not be touching the ground. ओके, सो द पंचांग प्रणतिपात में क्या आता है कि हेड आता है, 2 knees आता है और पीछे के 2 legs आते हैं. ओके, अगेन एक हेड आता है, अपना जो पाम्स है वो तो चरोडो में होता है, वो भूमि को टच नहीं करता है. तो हेड आता है, 2 knees आता है और पीछे के 2 legs आता है. तो सभी बुक्स में गलत लिखा है कि एल्बो शुड टच द ग्राउंड, बट एल्बो शुड नॉट टच द ग्राउंड. ओके, एल्बो शुड बी बिटवीन द लेग्स, नॉट टचिंग द ग्राउंड. तो कभी तुमने साधु महाराज का को देखा होगा, आई डोंट नो, मैंने तो बहुत देखा है. तो वो लोग कभी एल्बोस टच नहीं करते ग्राउंड को. द एल्बोस आर ऑलवेज बिटवीन द लेग्स. Uncle? हाँ, So it shows that it has a tribal in its hand. And then whenever we're bowing down in the temple, There is no charla. there's no tribal.
या तो उसमें ना प्रमार्जना करना पड़ता है। तो ये ना मतलब दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली तुम खमा समरा दो ना तो उसमें 70 संडासा आते हैं। ओके, मतलब दिस इज वेरी डीप डिटेल टॉपिक, हम ये लेंगे नहीं अभी, पर उसमें ना 70 संडासा आते हैं और 17 संडासा पूर्वक खमासना करना होता है। तो व्हाट इज 17 संडासा? 70 संडासा या 17 जगह पे प्रमार्जना करना होता है। ओके, so you have to do pramarjana at 17 places before you even bow down. So those 17 places are between your knees, you know, पीछे की भाग, the hands, the elbows, तुम्हारे आगे जहाँ पे तुम मस्तक झुका रहे हो वो प्लेस, एंड जब तुम वापस उठ रहे हो तो वापस नीज, वापस जहाँ पे दो पैर पीछे के उठे हैं उसके पीछे। तो देर आर 17 प्लेसेस यू हैव टू डू प्रमार्जना। तो उसको 17 संडासास बोलते हैं। और साधु महाराज साहब को अगर खमासना करते हुए देखा हो, दे फॉलो ऑल द 17 संडासास। वो लोग एकदम स्पीड में करते हैं, पर दे फॉलो ऑल द 17 प्रमार्जनास। वो फटाफट कर देते हैं प्रमार्जनास, पर वो लोग को प्रैक्टिस हो गई होती है। पर इफ यू हैव नोटिस, वो लोग अपने हाथ को पहले प्रमार्जना करते हैं, फिर भूमि को प्रमार्जना करते हैं, नीज के बीच में प्रमार्जना करते हैं। तो दैट इज हाउ यू हैव टू डू खमासना। मतलब ये क्लास में हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि व्हाट आर द 17 संडासास और वो सब, पर इन शॉर्ट यू हैव टू, तुम्हारा भूमि तुमको साफ करना है। एक्चुअली इंडिया में ना वो खेस होता है और खेस से तुमको भूमि साफ करना होता है। तो पहले के जमाने में दोनों यू नो मेल्स एंड फीमेल्स वो लोग खेस पहनते हैं, और खेस से वो तुमको भूमि तुमको प्रमार्जना करके तुमको तुमको करना होता है। और सामे को तो चरोडा होता है, तो उसमें खेस की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो एनी क्वेश्चंस ऑन दिस सूत्र, खमासना सूत्र? Okay, so this is very important sutra. So next time try to do this in a right manner, okay, right way. Okay, फिर उसके बाद नेक्स्ट सूत्र हम इचकार सूत्र पढ़ते हैं। ओके, तो इचकार सूत्र, कैन एनीवन रिसाइट द इचकार सूत्र? Ichikara. परमिशन ले या पहला बोल एन आई हाँ बोलो मायरा। इच्छकार Ichikara surai sudesi sukha tapa sharira nirabada sukha tapa. सुख संजम I mean sukha shanjam. भूली यात्रा Yatra nirvana soji Swami Sata Jiji Bad Banino Love Tejoji. Okay, good. Okay, ये इचकार सूत्र, right? It's again a part of Guru Vandan Sutra. So first thing we are doing here is हम Guru Vandan, Guru Vandan के सभी सूत्र ले रहे हैं, तो that way you can able to do Guru Vandan daily and in a perfect manner. तो ये इचकार सूत्र में we are asking for 5 things. Okay, तो what are the 5 things we are asking? Okay, तो पहले हम बोल रहे हैं इचकार सुअराई। मैं पहले एकदम सिंपल मीनिंग बोल देता हूँ। इचकार सुअराई सुअदेवसी, मतलब उसका मतलब तुम्हारी रात या तुम्हारा दिन तुम्हारा शांतिपूर्वक गया। ओके, मतलब तुम्हारे रात या दिन में कोई भी प्रकार की अशांति या कोई भी प्रकार का विघ्न नहीं आया। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग वी आर आस्किंग। सेकंड थिंग वी आर आस्किंग इज सुख तप। सुख तप मतलब आपकी तपश्चर्या सुखपूर्वक चल रही है। जो भी साधु महाराज जो भी तपश्चर्या कर रहे हैं, वो बाह्य और अभ्यंतर तप जो भी हो वो सुखपूर्वक चल रही है। फिर थर्ड थिंग वी आर आस्किंग इज शरीर निराबाध, मतलब आपका शरीर, ओके, आपके शरीर और आपकी इंद्रिय और आपका मन, ओके, सब कुछ में कोई पीड़ा नहीं है। ओके, सो इट्स नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी पेन्स और एनी डिजीज। तो शरीर निराबाध मतलब ऑल द 5 इंद्रियस, द शरीर एंड आपका मन, ओके, एवरीथिंग में कोई पीड़ा नहीं है। फिर सुख संयम, सुख संयम यात्रा निरोध खोजी, मतलब आपकी संयम की यात्रा सुख पूर्वक चल रही है। संयम की यात्रा मतलब 5 समिति और 3 गुप्ती का पालन। ओके, तो संयम की यात्रा आपका सुख पूर्वक चल रही है। एंड लास्ट थिंग वी आर आस्किंग इज स्वामी साता छे जी, मतलब आप साता में हो, मतलब तुमको कोई भी प्रकार का मुश्किल ही नहीं है। सो दिस आर द 5 थिंग्स वी आर आस्किंग। ओके, फर्स्ट थिंग वी आर आस्किंग इज आपका दिन या आपकी रात्रि में कोई विघ्न या कोई अशांति नहीं आया, आपकी तपश्चर्या सुखपूर्वक चल रही है,
आपका शरीर में कोई पीड़ा नहीं है, आपकी संयम यात्रा अच्छी तरह चल रही है और आपके जीवन में शांति या शाता है। ओके, सो दीज आर द 5 थिंग्स वी आर आस्किंग गुरु महाराज साहब। और उसके बाद द लास्ट थिंग वी आर सेइंग इज भात पानिनो लाभ देजो जी, मतलब आप हमारे घर में आना और हमको गोचरी का लाभ देना। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इचकार सूत्र। ओके, तो सो लेट्स सी लिटिल डिटेल मीनिंग। ओके, सो इचकार मतलब जैसे इच्छामी बोल रहे थे ना, उसी प्रकार से इचकार है। इचकार है मतलब मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताओ। ओके, इचकार मतलब प्लीज लेट मी नो, उसका मतलब है इचकार। सुअराई मतलब आपकी रात्रि, और सुअ देवसी मतलब आपका दिन। ओके, और सुअ मतलब सुख, मतलब आपकी रात्रि सुखपूर्वक पसार हुई या आपका दिन सुखपूर्वक पसार हो रहा है। और सुख तप मतलब आपका तप सुखपूर्वक हो रहा है। शरीर निराबध मतलब शरीर में कोई पीड़ा नहीं है। और सुख संयम यात्रा निरोधोजी मतलब आपकी संयम यात्रा निर्विघ्न से हो रही है। सो दीज आर द क्वेश्चंस वी आर आस्किंग। ओके, और फिर स्वामी साता छे जी मतलब आपके जीवन में सुख शांति है। और लास्ट में हम बोलते हैं हर पानी का लाभ देसो जी, मतलब प्लीज कम टू अवर हाउस फॉर गोचरी। ओके, सो दिस इज अ सिंपल मीनिंग ऑफ इचकार सूत्र। तो अभी द क्वेश्चन इज राइट, व्हेन डू यू से सुअराई एंड व्हेन डू यू से सुअ देवसी? डज एनीवन नो? You have to use only one of the twos, right? सुअराई and सुअ देवसी. 12 बजे के पहले सुअराई, 12 बजे के बाद सुअदेवसी। Right. So रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक सुअराई, और सुबह के 12 बजे से रात के 12 बजे तक सुअ देवसी। ओके, तो whenever you are in India, तो एक्चुअली कैसा होता है? ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस। ओके, व्हेन यू आर इन एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ गुरु महाराज साहब, तो तुम पहले बोलोगे इचकार सुअराई या सुअ देवसी, सुख तप शरीर निराबाध, सुख संयम यात्रा निरोधोजी, स्वामी साता छे जी। यू हैव टू आस्क एज अ क्वेश्चन, यू हैव टू रीड। तुमको डायरेक्ट सूत्र नहीं बोलने का, यू हैव टू आस्क देम एज अ क्वेश्चन। ओके, सो यू हैव टू स्टॉप देयर, you have to say ichkar suarai, then you have to stop. Suadev sukha tapa, then you have to stop as a question mark. Okay, sarira nirabadha sukha संयम जाता निरो छोजी स्वामी साता छेजी, then you have to stop. तो अगर इंडिया में गुरु हो तो गुरु बोलेंगे देव गुरु पसाए, so there they will communicate with you, और वहां पे तुमको आंसर मिलेगा देव गुरु पसाए, मतलब देव गुरु की कृपा से मैं सुख साता में हूं। ओके, फिर उसके बाद आपको बोलना है भात पाइनो लाभ देजो जी, और गुरु महाराज बोलेंगे वर्तमान जोग। डज एनीवन नो द मीनिंग ऑफ वर्तमान जोग? मतलब वर्तमान जो मतलब अगर वो समय आएगा तो मतलब ऐसा कुछ, राइट? कि या वर्तमान जोग मतलब मैं अभी हाँ या नहीं नानी बोल समय के सकता हूँ। ऊपर, हाँ, या तो समय अगर आए तो जरूरत पड़े तो Yeah. मैं आऊंगा, अगर नहीं जरूरत पड़े तो नहीं आऊंगा। जो वर्तमान में जो भी परिस्थिति हो उस हिसाब से मतलब ही वोंट से यस और ही वोंट से नो। उसका कारण ऐसा है कि अगर यस बोल दे और नहीं आए तो प्रॉब्लम है, राइट? उनको मिथ्या वचन का वो दोष लगता है। और अगर वो ना बोले और उनको जाना पड़े कोई जरूरत के कारण, तो फिर वो जा नहीं सकते। तो इसलिए वो वर्तमान जोग बोलते हैं कि अभी 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 कोई आने की कोई इच्छा या कुछ है नहीं, पर अगर वर्तमान में कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो तो मैं आ सकता हूँ, ऐसा। तो उसको वर्तमान जोग बोलते हैं। तो साधु महाराज साहब हर बार यही बोलते हैं वर्तमान जोग। ओके, सो दिस इज हाउ यू कम्युनिकेट, ओके, इन बोथ द सूत्रस विद साधु महाराज साहब। इन द फर्स्ट सूत्र इच्छामि खमा समनो वंदियुम जामि जय निसी आए, फिर साधु महाराज बोलेंगे छंदेना, and then you say Mathir Vandami. And in second sutra also, after the first 5 lines, वो बोलेंगे देव गुरु पसाए, उसके बाद आपको पूछना है भात पाइनो लाभ देजो जी। Okay, and then he will say Vartman Jog. So this is how you actually communicate with the Sadhu Maharaj Sahib. Okay, तो हम यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए एंड करते हैं, पर आई थिंक वी विल समर के लिए मेरे को थोड़ा डिटेल में थोड़ा लेना है टॉपिक।
तो if you want to sit, you can sit. You know, आप सुन सकते हो. But I want to go in little bit of detail with Samar. बोल it's okay. ठीक है it's okay Myra. ओके तो पहला टॉपिक हमने जो पंचेंद्रिय सूत्र में लिया, तो वी स्किप्ड वन ऑफ द टॉपिक्स. उसमें था कि ब्रह्मचर्य के 9 वार्ड, राइट? डू यू नो द ब्रह्मचर्य के 9 वार्ड, समर? Okay, so do you know brahmacharya ke 9 ward? I know there's certain you can't visit a place where a person of the opposite gender is staying. Yeah. You can't talk to the opposite gender. You can't sit in a place where the opposite gender has sat for a certain amount of time. Right. Man, it's in the jab book. Oh my god. Can't remember. Okay, no, I think you're pretty close. That's good. That's very good. So I'll just read it. तो पहला वार्ड है कि अगर साधु महाराज साहब हो तो वो स्त्री जहाँ पे हो वहाँ पे वो रहते नहीं है, राइट? मतलब वो स्थान पे रहते नहीं है जहाँ पे अकेली स्त्री हो. So that is the first, and साध्वी के लिए भी it applies the same. Okay, so now we are only talking about साधु महाराज साहब. So जहाँ पे स्त्री हो वो स्थान पे रहते नहीं है. फिर स्त्री संबंधी वार्तालाप नहीं करते. They don't talk about anything about स्त्री. Okay. फिर थर्ड थिंग, एज यू सेड, कि वो स्त्री जो आसन पे बैठी हो वो आसन पे वो 2 घड़ी तक नहीं बैठते. ओके, फॉर 48 मिनट्स. एंड फॉर साध्वी महाराज साहब इट्स फॉर 3 प्रहर्स, इट्स फॉर 9 आवर्स. ओके, सो साध्वी महाराज साहब जो अगर पुरुष बैठा हो तो वो आसन पे दे डोंट सिट फॉर 9 आवर्स. एंड फॉर साधु महाराज साहब इट्स जस्ट फॉर 48 मिनट्स. फिर उसके बाद स्त्री के अंगोपांग नहीं देखते. फिर उसके बाद दीवाल, मतलब दे डोंट स्टे इन अ प्लेस कि जहाँ पे दीवाल के पीछे कोई कपल रहता हो. ओके, सो दे डोंट से उससे थोड़ा दूर रहते. दे डोंट शेयर द सेम वॉल. उसके बाद जो पूर्व काल की कोई भी क्रीड़ा का स्मरण नहीं होता है. दे डोंट थिंक अबाउट एनी पास्ट एक्टिविटीज रिलेटेड टू स्त्री. फिर 7th इज ऐसा वो आहार ग्रहण नहीं करते जिससे नहीं, मतलब पहला तो प्रमाण से ज्यादा खाते नहीं है, मतलब दे डोंट ओवर ईट. ओके, एंड फिर उसके बाद मादक आहार पानी नहीं लेते. मतलब दे जनरली वो लोग का विगय का त्याग या कुछ ना कुछ होता है. दे डोंट ईट वेरी पौष्टिक खाना. ओके, और फिर लास्ट है वो लोग शरीर का श्रृंगार नहीं करते. मतलब दे डोंट डू एनी टाइप ऑफ मेकअप्स. ओके, सो दिस आर द 9 वार्ड ऑफ ब्रह्मचर्यस that you have to remember, because tum jab if you count Naukar Wali, right, and if you think about each and every gun, then it's better to remember all the 9 ward of brahmacharya. So you can use each of these guns for each Naukar. फिर उसके बाद है I wanted to talk about this 5 आचार. Okay, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार. Okay, so this is very important topic. तो पहला है ज्ञानाचार. ओके, सो ज्ञानाचार में 8 चीज आते हैं. ओके, देयर आर 8 things that fall under ज्ञानाचार. आई डोंट नो whether you know this or not, but when you say अतिचार, right, अतिचार में we say this: काले विनय बहुमाने उहाने तो अन्य होने वंजन अट्ठ तटुभय अट्ठवियो नाम आयारो. Okay, so it describes the 8 things that fall under ज्ञानाचार. So what are the 8 things? तो पहला है काल. ओके, काल मतलब टाइम. तो पहले तो योग्य समय पे वो लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, और अयोग्य समय पे वो लोग पढ़ाते नहीं है. ओके, सो दे रीड एंड राइट, मतलब वो स्वाध्याय करते हैं, दे डू एट द राइट टाइम. ओके, सो जैसे स्त्रियों को 3 दिन को अकाल बोलते हैं, राइट, व्हेन देयर आर 3 days, इट्स नोन एज अकार. सो अकार को पढ़ नहीं सकते, अकार को स्वाध्याय नहीं कर सकते. सो दैट इज फर्स्ट इज काल. एंड काल हैज लॉट्स ऑफ थिंग्स. जैसे तुम खाते खाते बोल नहीं सकते, और या बोलते बोलते खा नहीं सकते. दैट इज ऑल्सो अकार. फिर उसके बाद तुम रेस्टरूम जाओ तो तुम फोन्स या बुक्स यूज नहीं कर सकते, कोई पेपर यूज नहीं कर सकते. दैट इज ऑल्सो अकार, बिकॉज वो तुम रेस्टरूम जा रहे हो, दैट इज टाइम, राइट, यू आर गोइंग एट दैट टाइम. सो दैट ऑल एवरीथिंग फॉल्स अंडर कार. ओके, सेकंड इज विनय. ओके, विनय इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण. तुम जिसके पास से तुम ज्ञान ले रहे हो उसका रिस्पेक्ट करने का, यू रिस्पेक्ट दैट पर्सन.
तुम अगर साधु महाराज से ले रहे हो तो साधु महाराज का रिस्पेक्ट करने का, या अपने पाठशाला टीचर से तुम ले रहे हो तो उनका रिस्पेक्ट करने का। फिर थर्ड इज बहुमान। सो नॉट जस्ट विनय, वी टॉक अबाउट बहुमान, मतलब जिससे पास है तुम ज्ञान ले रहे हो उसका, उसके प्रति भक्ति भाव रखने का, नॉट जस्ट रिस्पेक्ट, उसके प्रति भक्ति भाव, एक पूज्य भाव वो होने का, तो उसको बहुमान कहते हैं। फिर फोर्थ है उवहान है, उहान है मतलब उपदान, मतलब अपने शास्त्र में लिखा है कि तुम कोई भी सूत्र पढ़ो ना तो उपदान तब करने पड़ते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू डू नौकार मंत्र, देन यू हैव टू डू एटलीस्ट 18 days ऑफ उपदान तप। इवन इफ यू वांट टू से लोक सूत्र, यू हैव टू स्टिल डू उपदान तप। तो उपदान अगर हमने नहीं किया हो तो उसके अतिचार लगते हैं। ओके, तो दैट इज अतिचार, यू नो, यू हैव टू टेक द नौकार मंत्र, पंचेंद्रिय सूत्र, सभी कोई सूत्र गुरु महाराज साहब से मुख से लेने के और ये तपस्या करके लेने के, तब वो उसका रिजल्ट मिलता है। देन फिफ्थ इज अन्नी हमरे। अन्नी हमरे मतलब जिसके पास से तुमने ज्ञान लिया हो उसको छुपाने का नहीं, मतलब वो पर्टिकुलर व्यक्ति को छुपाने का नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल तुमने किसी से ज्ञान लिया हो, अगर कोई पूछे देन यू हैव टू टेल देम कि मैंने इस पर्सन से ज्ञान लिया है। ओके, सो यू डोंट, उसमें माया नहीं करने की, यू हैव टू ऑलवेज डिस्क्लोज कि तुमने किससे ज्ञान लिया है। फिर उसके बाद है वंजन। वंजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी शब्द बोलो वो शुद्ध उच्चारण पूर्वक बोलने का। ओके, कहीं पे भी अशुद्धि आए तो उस पर अतिचार लगते हैं। फिर उसके बाद है अर्थ। अर्थ मतलब अर्थ, मतलब तुम जो भी शब्द बोलो उसका राइट मीनिंग तुमको माइंड में तुमको सोचने का, उसका अगर रॉन्ग मीनिंग सोचो तो भी तुमको अतिचार लगते हैं, और तुम अगर मीनिंग नहीं सोचो तो बहुत बड़ा अतिचार लगता है। ओके, सो व्हेन यू से इवन लाइक अ स्मॉलेस्ट नौकार, यू हैव टू ऑलवेज think about the meaning of each and every word. Okay, and if you think about a wrong meaning, वहां पे अतिचार लगता है, अगर मीनिंग नहीं सोचो तो उससे बड़ा अतिचार लगता है। ओके, और लास्ट इज तदुभय। तदुभय इज दोनों शब्द और अर्थ, मतलब तुम शब्द भी शुद्ध बोलो और मीनिंग भी शुद्ध करो, तो दोनों कंबाइंड, उसको तदुभय बोलते हैं। ओके, सो दिस आर द 8 अतिचार्स ऑफ ज्ञानाचार। ओके, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, क्योंकि whenever you are doing प्रतिक्रमण, you can at least think of this अतिचार्स in your mind. जब ज्ञानाचार का अतिचार का वर्णन आ रहा हो, you can at least think about these 8 अतिचार्स, और you can do मिच्छामि दुक्कडम after that. फिर उसके बाद है दर्शनाचार। ओके, दर्शनाचार में भी 8 अतिचार है, उसमें निस्संख्य, निक्कमख्य, निवितिकिच्छा, अमुद्दितीय, उव तिरिकरण, वरचन, प्रभावने अट्ठ। ओके, तो पहला है निसंकता। ओके, निसंकता मतलब कि अपने शास्त्र के वचन उस पर कोई शंका नहीं होने का, यू शुड नॉट हैव एनी डाउट ऑन वॉट एवर द शास्त्र के वचन हो, तो उसको निसंकता बोलते हैं। तो दैट इज फर्स्ट दर्शनाचार का। फिर दूसरा है निष्कांकता, मतलब निक्कमखिया। मतलब निक्कमखिया मतलब प्रभु के शासन पे अनन्य राग। ओके, एक बहुमान भाव, एक भक्ति भाव। ओके, वो होना चाहिए। ओके, तो जैन धर्म के प्रति, जैन शास्त्रों के प्रति और प्रभु के शासन के प्रति एक बहुमान भाव और एक राग होना चाहिए, कि उसके कारण तुम दूसरे धर्म के प्रति तुम आकर्षण न हो, तो उसको बोलते निक्कमखिया। ओके, थर्ड इज निवितिकिच्छा। निवितिकिच्छा मतलब कोई भी जैसे साधु साध्वी का कुछ खराब मैले कपड़े देखे और तुमको उन पे अणगमा या नफरत जैसा हो जाए, यू नो, तो उसको निवितिकिच्छा बोलते हैं, वो भी अतिचार है। तुमको साधु महाराज साहब के खराब वस्त्र या मैले कपड़े देख के तुमको उनके प्रति यू नो अनादर नहीं होना चाहिए, अणगमा नहीं होना चाहिए, तुमको उनके प्रति आदर होना चाहिए। और नॉट जस्ट साधु साध्वी के प्रति, कोई भी धर्म क्रिया के प्रति, कोई भी साधर्मिक के प्रति, या इवन सामायिक या प्रतिक्रमण करो तो उसमें तुमको अणगमा नहीं होना चाहिए, तुमको बोरिंग नहीं लगना चाहिए, यू हैव टू डू विथ फुल उत्साह। ओके, अगर तुमको बोर मारता हो देन वो अतिचार हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद है अमुद्दितीय। अमुद्दितीय मतलब कि अपना जैन धर्म और अपना जैन शासन इज कंप्लीट, अपना जो शास्त्र है इट इज कंप्लीट, जो द्वादशांगी में जो नॉलेज है इट्स अ कंप्लीट नॉलेज। तो ऐसा विश्वास कि दूसरे धर्म में जो नॉलेज है वो तो हमारे में है ही, जो अच्छा नॉलेज है, पर अपने में जो नॉलेज है वो दूसरे में नहीं है। ओके, सो जो दूसरे में है वो अपने में है, पर अपने में है वो दूसरे में नहीं है। सो ऐसा विजन और ऐसा विश्वास, उसको अमूढ़ दृष्टि बोलते हैं।
फिर उसके बाद है उपभ्रूहणा. ओके, उपभ्रूहणा मतलब शास्त्र को अच्छी तरह जानने का, मतलब शास्त्रों को पढ़ने का, उसका सूक्ष्म और उसका जो मीनिंग है उसको अच्छी तरह जान के तुमको उसकी प्रशंसा करने की. ओके, सो दैट इज नोन एज उपभ्रूहणा. तो पहले तो शास्त्र को जानने का, उसके बाद उसकी प्रशंसा करने की. फिर उसके बाद है स्थिरीकरण. स्थिरीकरण मतलब कोई भी अगर जैन धर्म से कोई चलित हो गया हो, यू नो, पर्सन हु हैज स्टॉप्ड फॉलोइंग जैन धर्म, उसको वापस जैन धर्म में लेके आने का, वो प्रयत्न करना, उसको स्थिरीकरण बोलते हैं. ओके, अगर तुम प्रयत्न नहीं करो तो अतिचार लगते हैं. सो इट्स योर ड्यूटी टू ब्रिंग दैट पर्सन बैक टू द जैन धर्म. ओके, फिर 7th है वात्सल्य. वात्सल्य मतलब तुमको साधु महाराज के प्रति, अपने देरासर, उपाश्रय, साधर्मिक सभी चीज के प्रति एक प्रेम रखने का, वात्सल्य भाव रखने का, प्रेम रखने का, तो उसको वात्सल्य कहते हैं. और लास्ट इज प्रभावना. प्रभावना मतलब जैन धर्म को फैलाने का. इट्स योर ड्यूटी कि तुम दूसरे जो जैन नहीं है उसको तुम जैन धर्म समझा के तुमको जैन बनाओ. ओके, दैट इज योर ड्यूटी. अगर तुम वो नहीं करो तो भी अतिचार लगते हैं. सो दिस इज द दर्शनाचार के 8 अतिचार. ओके, आई एम गोइंग लिटिल क्विकर, पर तुम रिकॉर्डिंग देख के देन यू कैन राइट एवरीथिंग डाउन. ओके, फिर उसके बाद चारित्राचार. चारित्राचार तो तुमको पता है, 5 समिति और 3 गुप्ती का पालन. ओके, सो उसमें अगेन 8 आते हैं. तो ज्ञानाचार में 8, दर्शनाचार में 8, चारित्राचार में 8. फिर उसके बाद तपाचार में 12. ओके, 6 बाह्य 6 अभ्यंतर, राइट. तो उसमें तो आई थिंक इट्स प्रीटी सिंपल. अनशन मतलब यू नो राइट, उपवास करना इस अनशन, या जो भी तप करना इस अनशन. उनोदरी मतलब यू नो उनोदरी, Yeah, eating before you become full. Eating. राइट, लेस. Eating full, yeah. Eating less, right? Eating less, yeah, basically. ओके, yes. वृत्ति संक्षेप. Eating in a certain area, or is that Unodari? Unodari is my, no, that's Unodari is that. नहीं, वृत्तिक संक्षेप मतलब कम द्रव्य खाने का. नॉट जस्ट ईटिंग लेस, मतलब जैसे उनोदरी में अगर 5 रोटी खा रहे हो तो यू कैन ईट 3 या 4 रोटीज, दैट इज उनोदरी. बट वृत्तिक संक्षेप मतलब अगर इफ यू आर ईटिंग 5 थिंग्स, ईट 4 थिंग्स. ओके, तो वो वृत्ति को मतलब यू आर कंट्रोलिंग योर सेंसेस, दैट इज वृत्ति संक्षेप. और फिर रस त्याग मतलब Giving up tasty foods, basically. राइट, या तो जनरली विगय का त्याग आता है उसमें. ओके, फिर काया क्लेश मतलब Tolerating, what do you call it? Tolerating pain. नो, दैट इज संलिनता. Oh my God. काया क्लेश मतलब नहीं, आई थिंक यू माइट बी राइट. आई थिंक दोनों सिमिलर मीनिंग होते हैं. काया क्लेश मतलब जैसे लोच या वो सब सहन करने का, जैसे कोई भी पेन्स हो उसको सहन करने का. और संलिनता मतलब अपने अंगों पांगों को सीमित रखना, मतलब यू डोंट मूव योर हैंड और बॉडी और लेग्स टू ऑफन. ओके, जब जरूरत हो तब मूव करने का. सो काया क्लेश इज बेसिकली कष्ट सहन करने का, एंड संलिनता इज गुप्ति, बेसिकली काया गुप्ति. ओके, तो दैट इज 6 बाह्य तप. देन नेक्स्ट इज 6 अभ्यंतर तप. तो प्रायश्चित, यू माइट नो प्रायश्चित, राइट. Yeah, repentance. ओके, या तो गुरु महाराज के पास जाके तुमको आलोचना लेने का, दैट इज प्रायश्चित. विनय इज रिस्पेक्ट. वैयावृत इज यू नो वैयावच करने का, साधु साध्वी का. स्वाध्याय, यू नो व्हाट इज स्वाध्याय, राइट, पढ़ने का. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्वाध्याय, राइट. यू नो 5 टाइप्स ऑफ स्वाध्याय. वाचना, पृछना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा, लक्षण, पंचविध स्वाध्याय. I've never heard of ओके, this. सो 5 टाइप्स ऑफ स्वाध्याय आर. पहले तो वाचना. वाचना मतलब सुनने का. राइट नाउ यू आर डूइंग 1 टाइप ऑफ स्वाध्याय. ओके, यू आर लिसनिंग टू अ लेक्चर, so that is first type of swadhyay. Second is pruchna, matlab if you have doubts in the lecture you ask questions, that is also a swadhyay. Okay, so पूछना. फिर परावर्तन. परावर्तन मतलब जो भी तुमने सुना है स्वाध्याय, यार तुमने whatever you have read उसका तुमको चिंतन करने का. परावर्तन मतलब you have to revise again, उसको परावर्तन बोलते हैं. अनुप्रेक्षा मतलब उसका चिंतन करने का. परावर्तन इज रिवाइजिंग. अनुप्रेक्षा मतलब तुमको शांति से बैठ के उसका डीपर मीनिंग सोचने का, उसके ऊपर चिंतन करने का, अनुप्रेक्षा. और फिर उसके बाद लास्ट है, लास्ट कौन सा है, धर्म कथा. या धर्म कथा, राइट. धर्म कथा इज स्टोरीज, राइट, धर्म की स्टोरीज. सो दिस आर द 5 टाइप्स ऑफ स्वाध्याय.
So and the last is Dhyan and Kautsarg, right? You know Dhyan and Kautsarg, right? Dhyan is Kayatsarg. I mean, Dhyan is Kayatsarg. Dhyan is meditation, and Kayatsarg standing still. I mean, that's how you're supposed to do it. Yeah, But, Kautsarg is Thaneram, Moneram, Janeram. Okay, all the three क्रिया करे तो कौसर्ग होता है. मतलब थानेरम मतलब एक स्थान पे स्थिर होके, मोनेरम मतलब मन में सिर्फ जो भी तुम लोकगस कर रहे हो तो लोकगस के विचार. ओके, सो और फिर काया को स्थिर करके और वचन गुप्ती में रह के उसको करो तो उसको कौसर्ग कहते हैं. और ध्यान बहुत ऊंची प्रक्रिया है. ध्यान इज बेसिकली आत्मानुभूति, उसको ध्यान कहते हैं. यू गो इनटू योर आत्मा, दैट इज बेसिकली ध्यान. तो दिस आर द 6 बाह्य एंड 6 अभ्यंतर तप, वो तपाचार में आते हैं. और फिर लास्ट है वीर्याचार. तो वीर्याचार में इट्स प्रीटी सिंपल. उसमें 3 आते हैं, मन, वचन और काया का संपूर्ण उपयोग. मतलब जैसे हमने एक खमासन भी दे रहे हैं तो हमको वी हैव टू डू खमासना इन अ राइट वे. ओके, उसमें 70 संडासा का पालन करके वॉट एवर द क्रिया, उसमें शुद्ध क्रिया करके उस तरह से क्रिया करो तो वो तो वीर्याचार, उसको वीर्याचार कहते हैं. और अगर तुम मन, वचन, काया का संपूर्ण शक्ति यूज नहीं करो तो उसमें अतिचार लगते हैं. ओके, सो देर आर 3. सो टोटल 39 होते हैं. 8 फॉर ज्ञानाचार, 8 फॉर दर्शनाचार, 8 फॉर चारित्राचार, 12 फॉर तपाचार एंड 3 फॉर वीर्याचार. ओके, सो टोटल 39 अतिचार लगते हैं हमको. एंड साधु साध्वी के लिए भी और हमारे लिए भी है ये. ओके, तो ये चीज कवर करनी थी मुझे. तो आई थिंक दिस बेसिकली कंप्लीट्स लाइक पंचेंद्रिय सूत्र तुम्हारे लिए. So any questions on that? No, actually I have a question about sadhu sadhus. Actually, when they do Gotri, right? Yeah. How do they know that there is a Jain house? Like, do they have the type of jnana that, oh, it's a Jain house here, or is it like, do they just get lucky or something like that? Yeah, so generally ना they don't usually, ऐसा नहीं है कि वो जैन घर में ही जाते हैं. Okay, they don't have to go to Jain house. तो अभी क्या होता है कि अभी थोड़ी सिचुएशन इज लिटिल डिफरेंट. ओके, पर पहले क्या था कि इतना नॉन वेजिटेरियंस और वो सब थे नहीं. ओके, तो जनरली वो लोग हिंदू के घर में भी जाते थे और वहाँ पे वो लोग जो भी मिलता है ले लेते थे. जैसे वहाँ पे रोटी तो मिल जाता है, राइट? रोटी मिल जाता है, कुछ जैन का कुछ और भी मिल जाता है. सो दे डिडंट हैव टू गो टू द जैन हाउस. पर अभी क्या है कि अनफॉर्चुनेटली जैन हाउस में भी जैन नहीं मिलता है. अभी ऐसा हो गया है. तो अभी क्या है कि दे आस्क द श्रावक्स. ओके, वहाँ पे जो गांव में जा रहे हो वो जनरली वो पूछते हैं कि यहाँ पे कितने जैनों के घर है, यहाँ पे जैन का एरिया कौन सा है. दे जस्ट आस्क दैट मच कि जैन का एरिया कौन सा है. जनरली जैन पीपल दे आर लिविंग इन कम्युनिटी. तो बोलेंगे कि ये सोसाइटी में जाओ, ये सोसाइटी में तुमको 15 जैन घर मिलेंगे. तो दे नो दैट दे हैव टू गो टू दैट सोसाइटी, तो एटलीस्ट वहाँ पे उनको जैन खाना मिल जाए. सो दे आस्क फ्यू क्वेश्चंस टू श्रावक. पर पहले के जमाने में तो दे डिडंट हैव टू, वो लोग हिंदू के घर में जाके भी उनको जैन खाना मिल जाता था. Okay, makes sense. I have no other questions. ओके ऑलराइट चेतन भाई. ओके, हाँ ओके, थैंक यू. थैंक यू सो मच. वो अच्छा था पीछे का पंचेंद्रिय का. हाँ ठीक है. नहीं, मेरे को समर के लिए सेपरेट लेना था थोड़ा. हाँ, या नहीं, थैंक यू सो मच फॉर दैट. ओके ओके, थैंक यू. Okay.